اور ان کے ساتھ دوسرے مہمان بھی آئے. ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب بخاری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی آمد ہمارے لیے باعث افتخار ہے. عزیزان محترم، عرس مبارک کی ان تقریبات میں میاں اسلم جلال صاحب نے اس بات پر ہمیں خصوصی طور پر ہدایت کی کہ پاکستان کے اندر جس طرح دہشت گردی کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں، تو دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 50,000 سے زیادہ انسانی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا. 78,000 ڈالر سے زیادہ معاشی نقصان ہوا. ہمارا پیغام ہے امن کا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سلامتی کا پیغام ہے. اسلام کا معنی سلامتی کا دین ہے. تو ہمارا مذہب تمام مذاہب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے، ہم آہنگی لانے کے لیے یہ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. تو امن کانفرنس کے ہمارے پہلے مہمان میں دعوت دوں گا. ڈاکٹر نذیر مسیح صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری اس کانفرنس کو رونق بخشیں. جناب ڈاکٹر نذیر مسیح صاحب. بات ہے کہ میں آج کے اس بہت ہی خاص موقع میں یہاں آپ کے سامنے اس امن کانفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں. اور میں خاص طور پر اپنے بات کو شروع کرنے سے پہلے اس عرس کے تقریبات کے اعلیٰ تمام انتظام کرنے والوں کے لیے اور امن کانفرنس کے لیے خاص طور پر محترم میاں محمد اسلم جلال آف مانچسٹر سے ان کا مشکور اس بڑی اہم کاوش کے لیے. جناب محترم حاجی محمد سعید صاحب وہ بھی یو کے سے ہیں، ان کا بھی بڑا مشکور ہوں. اور شیخ ضیاء صاحب اور میں اپنے بڑے عزیز دوست محمد طاہر شیخ صاحب کا بڑا مشکور ہوں. پچھلے سال بھی انہوں نے یہ بات مجھے بلانے کی کوشش کی. میں کافی بزی تھا، نہیں آ سکا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ دفعہ آپ کے ساتھ جو بات میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، مسیحیت اور مسیح مذہب بہت ہی سمپل اور سادہ لفظوں میں امن کا پیغام دیتا ہے. میں جب بائبل مقدس کو پڑھتا اور دیکھتا ہوں تو وہاں لکھا ہے کہ جیسے تم اپنے آپ سے محبت رکھتے ہو ویسے ہی تم دوسرے انسانوں سے جن سے تم ملتے ہو ویسے ہی ان سے محبت رکھو. اور بڑا خاص جو ہے وہاں ایک اہم بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب اور ہر قوم اور ہر قبیلے کے لوگ جو اپنی انفرادی شخصیت رکھتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنا ہے اور ان سے محبت اور پیار کرنا ہے. اور اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ امن کا بانی، اور ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں. اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے مسلم بھائی بھی خدا خالق کی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ خدا خالق کی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں. اور آج جب ہم یہاں حاضر ہیں خاص طور پر تو ہم خدا کی اس محبت کو جو اس نے بنی نوع انسان سے کی اور ان کی نجات اور مخلصی کے لیے خدا خالق نے خاص انتظام کیا تاکہ گزرے وقتوں میں وہ اپنے انبیاءوں کو بھیجتا رہا اور ان کا پیغام محبت، امن، اطمینان اور برداشت اور ان کا پیغام خداوند کی نزدیکی اور قربت کا پیغام تھا. اور یہی پیغام آج
हमको इस स्टेज पर ले आया है कि हम सब कौमें पाकिस्तान में जो रहते हैं या पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, हम सब कौमें जो हैं हम इंसान हैं और इंसान होते हुए हमें इंसानियत की कदर करते, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो या किसी भी कौम से वो ताल्लुक रखता हो। जब इंसान है तो इंसान से मोहब्बत करना यही सबसे बड़ा मजहब है और यही हम मसीहत में पाते हैं। मैं एक बात जो खुदावंद यीशु मसीह की अंजील में है, मत्ती की अंजील 7 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और आगे जब पूरा पढ़ा जाता है और बाइबल मुकद्दस को देखा जाता है तो बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और खुदा चाहता है कि हम जो इंसान खुदा की तख्लीक है हमें भी दूसरों के साथ वैसी ही मोहब्बत करनी है जैसी खुदा हमसे रखता है। और एक और बड़ी अहम बात है, कलाम में मुकद्दस एक बड़ा अहम समझ ये देता है कि हमें अपने अंदर अमन लाने के लिए बर्दाश्त का मादा रखना है, दूसरों की बात को बर्दाश्त करके उनके साथ मिलकर रहना सीखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप को और दूसरों को माफ करने का अपने अंदर दर्श रखना है। अगर ऐसा है तो फिर ये अमन कॉन्फ्रेंस जहां आप और मैं आज आए हैं, इसका सही मकसद जो है हमारे सामने नजर आएगा। फिर हम जो इंसान हैं हम में इंसानियत आएगी और जहां कहीं हम जाएंगे हम अमन, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा और मिलनसार तरीके से रहेंगे। मैं अंजील में से दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी मैं 18वीं और 19वीं आयत कोट करना चाहता हूं और वहां ये लिखा हुआ है, लिखा है कि खुदा इंसानों के साथ मिलकर इल्तमास करता है, यानी कि दरख्वास्त करता है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लो, अमन कर लो, सुलह कर लो, मोहब्बत में रहो। बड़ा ही अहम सबक है, यानी कि खुदा की मर्जी इंसान के लिए इस दुनिया में यह है कि इंसान मोहब्बत, प्यार और मिलनसारी के साथ रहे और सारे तबके, सारे फर्क खत्म कर और ये जाने कि हम इस जमीन पर खुदा की मोहब्बत को उजागर करने के लिए आए। और आज मैं खुदा यीशु मसीह के मज़हब में उसके पैगाम को देना चाहता हूं और वो ये है कि मसीहत माफ कर देने वाला मज़हब है, मसीहत अमन का मज़हब है, मसीहत मोहब्बत का मज़हब है, मसीहत हर एक भाई बहन, हर एक मज़हब और हर एक फिरके को साथ लेकर चलने वाला मज़हब है, ताकि हम इस दुनिया में अमन और सलामती से रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारी ये अमन की जो कॉन्फ्रेंस है इसके वसीला से हम सब जो हैं अमन में और सलामती में खुदावंद की आमद के लिए तैयार पाए। थैंक यू। पर अमन और सलामती का पैगाम दिया, दूसरों को तमाम तकलीफें देने के बावजूद अपने सीने से लगाया और किसी को तकलीफ नहीं दी। अगर तैफ का मुकाम है तो वहां पर भी आपने देखा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया गया। रब कायनात की जो ऊपर जलालत थी वो अपने तैब में आ गई और फरमाया कि ऐ नबी, अगर आप हुक्म फर्म को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा तो हमारी ये खुश नसीबी है कि आले मोहम्मद के घराने में से जनाब साहबजादा सैयद गफूर हैदर गिलानी साहब से दरख्वास्त करूंगा, आप ज़ेब
सजादा नशीन है दरबार आलिया पनागा शरीफ, कोटली आज़ाद कश्मीर। आप तशरीफ लाए और अपने मोहब्बत भरे पैगाम को, दीन मुस्तफ़ा के इस हुस्न भरे पैगाम को अपने अल्फाजों में इंसानीन तक पहुँचाए। बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस में जनाब साहबजादा वकूनु मस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत में मुहिबान मुस्तफ़ा हदिया इस्लातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। समाईन मोहतरम, आज जिस जगह में हम बैठे हैं, यहाँ जिनके रूबरू मैं खड़ा हूँ, जिनकी बारगाह में हम बैठे हैं, इनका नाम है सैयद अली रंग कलंदर। और ये जो मैं ये मजमा देख रहा हूँ, ये जो रौनक देख रहा हूँ, ये जो चरागा देख रहा हूँ, ये जो चेहरों की मुस्कुराहटें देख रहा हूँ, ये कुरान मजीद का यही इरशाद जो आया मुकद्दसा तिलावत की है। ये देखो कि रंग अली का रंग है कि जिस रंग में सारे आके जमा हो गए। यही इस्लाम का असल रंग है, सूफियाना रंग, कलंदराना रंग, मोहब्बत का रंग, चाहत का रंग, प्यार का रंग, अकीदत का रंग और एक दूसरे से मिल बैठने का रंग। तो मैंने कुरान मजीद से जो आया है मुकद्दसा तिलावत की है। बारी ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ये जो सच्चे हैं इनकी संगत में आकर बैठ जाओ, इनके कुर्ब में आकर बैठ जाओ। और कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल फरमाते हैं कि दी का फलसफा जो बताते हैं, आप फरमाते हैं कि दी सरापाए सोख्तन अंदर तलब, दी सरापाए सोख्तन अंदर तलब, आगाज़श अदब व इंतहायश इश्क। आपने फरमाया कि दी सारे का सारा, दी सारे का सारा किसी की मोहब्बत में जलने का नाम है। दी सारे का सारा किसी की चाहत में जलने का नाम है। दी सारे का सारा किसी के प्यार में जिंदगी गुजारने का नाम है। दी सारे का सारा किसी की उल्फत में रहने का नाम है। दी सारे का सारा किसी की चाहत में रहने का नाम है। फरमाया इसका आगाज अदब है और इसकी इंतहा इश्क है। कलंदर लाहौरी भी मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं। तो जो आया मुकद्दसा मैंने तिलावत की है, क्योंकि आज की जो महफिल है बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस और रूबरू एक अल्लाह के वली के, एक सच्चे के, फरमाया ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की संगत अख्तियार कर लो। तो समाईन मोहतरम, साहिब ईमान जब बंदा हो गया, फरमाया अब तुम साहिब ईमान हो गए हो। फिर फरमाया तुम ईमान के बाद अमल करो, क्योंकि ईमान होगा तो अमल कबूल होगा। फरमाया आप अमल, या अल्लाह क्या अब तेरे मकबूल बंदे हो गए हैं? फरमाया नहीं, अभी तुम मेरी बारगाह में मुकर्रब नहीं हुए हो, अभी तुम मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। बारी ताला आप क्या करें? फरमाया अब मखलूक से मोहब्बत करने वालों के दर पे जाओ, फिर मेरे मकबूल बंदे हो जाओ। समाईन मोहतरम, इस्लाम ने मोहब्बत का दर्स दिया है, इस्लाम ने चाहत का दर्स दिया है। अगर ताइफ के बाजार में सरकारे मदीना को पत्थर मारे जाते हैं
تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیتا ہے, جبریل جلدی جاؤ, آج میرے محبوب کو طائف والوں نے پتھر مارے ہیں, میرے محبوب کا خون نیچے نہ گرنے پائے, جاؤ جلدی سے جلدی اس بستی پہ عذاب لاؤ تاکہ یہ غرق ہو جائیں. لیکن دیکھیں سرکار کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر بھیجا گیا تھا. جب جبریل گیا عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم کریں تو میں ان طائف والوں کو غرق کر دوں. فرمایا نہیں, میں امن لے کر آیا ہوں, میں پیار کا درس لے کر آیا ہوں, میں چاہت کا درس لے کر آیا ہوں, میں محبت کا درس لے کر آیا ہوں. میں نے محبت سے دین کو پھیلانا ہے, میں نے امن سے دین کو پھیلانا ہے. اے جبریل انہیں معلوم نہیں میری حقیقت کیا ہے, انہیں ادراک نہیں میری معرفت کیا ہے, انہیں میرا پتہ نہیں ہے. اے جبریل میں مصطفیٰ اللہ نے بھیجا ہے زمین پر, مگر میں سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہوں. اگر یہ پتھر مارتے ہیں تو دیکھنا مصطفیٰ کی نگاہ سے اگر آج پتھر مارتے ہیں کل کلمہ پڑھ کے محبت والے ہو جائیں گے. فرمایا جبریل انہیں میرا مقام معلوم نہیں ہے, انہیں اسلام کی حقیقت پتہ نہیں ہے, یہ ابھی جانتے نہیں ہیں کہ جب مصطفیٰ کی نگاہ اٹھے گی, جب مصطفیٰ کا فیض, جب میری توجہ ہوگی, یہ آج پتھر مار رہے ہیں کل محبت سے دین بھی قبول کر لیں گے. تو اسلام دین کا درس ہے. اگر کوئی عیسائی بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, اگر کوئی راہب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, اگر کوئی سکھ برادری کا بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا تو بارگاہ مصطفیٰ سے امن ملا ہے, محبت ملی ہے, چاہت ملی ہے. جب باری تعالیٰ نے دنیا بنائی فرمایا مصطفیٰ میں دنیا بنانا چاہتا ہوں, اب دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں, محبت انسانیت سکھانا چاہتا ہوں. تو باری تعالیٰ سیکھیں گے کیسے, تو بندے سے کلام نہیں کرتا ہے. فرمایا گھبرانے کی بات نہیں, میں مجسمہ امن بنا کے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیج دوں گا. میں محبت کی تصویر بنا کر, میں چاہت کی تصویر بنا کر, میں سر سے پاؤں تک امن ہی امن, محبت والا. اگر کوئی پتھر مارے میرے مصطفیٰ دعا دیں گے, اگر کوئی کوڑا پھینکے گا میرے مصطفیٰ دعا دیں گے, اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھائے گا میرے مصطفیٰ دعا دیں گے, اگر کوئی تکلیفیں دے گا, اگر کوئی پریشانیاں دے گا, اگر کوئی دکھ دے گا, اگر کوئی تکلیفیں دے گا, اگر کوئی علم دے گا. فرمایا انسانوں اگر جینے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو, اگر امن کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو تیرے مصطفیٰ پہ جاؤ, ان سے بڑا امن والا کوئی نہیں ہے. اگر محبت سیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ سے بڑی محبت والا کوئی نہیں ہے. اگر درد سیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے بڑا انسانیت کا کوئی درس رکھنے والا نہیں ہے, کیونکہ میں نے مصطفیٰ کو سراپائے امن بنا کر بھیجا ہے, سراپائے محبت بنا کر بھیجا ہے, سراپائے چاہت بنا کر بھیجا ہے. آج لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں مگر اسلام وہ ہے جو صوفیاء کے در سے آج مل رہا ہے, جو صوفیاء کے آستانوں سے مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا کونوا مع الصادقین. جب ایسا فتنوں کا دور آ جائے, جب گمراہ لوگوں کا دور آئے, جب اسلام کو بدنام کرنے والوں لوگوں کا دور آئے, یا اللہ پھر کیا کریں گے؟ سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا ہے, اب ہدایت کے لیے کریں گے کیا؟ فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. قیامت تک اگر تم راہبری چاہتے ہو, اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو, باری تعالیٰ کیا کرے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین. سچوں کے راستے پہ چلو, یہ امن کا راستہ ہے, یہ محبت کا راستہ ہے, یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا راستہ ہے, یہ اجڑی ہوئی دنیا کو بسانے والے لوگوں کا راستہ ہے, یہ دکھی انسانیت کو سینے سے لگانے والوں کا راستہ ہے. دیکھیں آج ان کے دربار پر ہر مذہب کا بندہ آیا ہے اور قلندر کی شان ہے کہ کوئی بھی آئے, کسی مسلک کا بھی آئے, کسی کردار کا بھی آئے, اسے محروم نہیں رکھا جاتا. کیوں کہ یہ دربار محبت ہے, یہ
दरबार इंसानियत है, यहाँ से सलीका मिलता है। इसीलिए फरमाया कि नबूवत के दरवाजे बंद हो गए हैं, विलायत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अगर अमन चाहते हो तो सूफिया के दामन में आ जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक सूफी की बारगाह में शरीक हैं। और एक आखिरी बात, ये सूफी, ये कलंदर, ये आशिक, ये सच्चू की पहचान क्या है? दाता साहब अपनी किताब कश्फुल मौजूद में एक अल्लाह के सच्चे का वाकया लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक सच्चा, एक मोहब्बत वाला गुजरा है। 70 साल तक जंगलों में बैठकर अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को मनाते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोहे तूर पे जाते, बारी ताला से हम कलाम होते, आप पूछते कि मेरे यार की तरफ से कोई जवाब आया है कि नहीं? तो हर वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते नहीं। लेकिन एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गए कोहे तूर पे, जब हम कलाम हुए, बारी ताला ने फरमाया मूसा फलां बिन फलां फलां बस्ती में मेरा एक बंदा बैठा है, जाओ उसे ये कह दो कि तुम्हारी 70 साल की इबादत रद्द कर दी गई। क्योंकि अमन की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो सूफी से बड़ी मोहब्बत किसी की बारगाह से नहीं मिल सकती। फरमाया जाओ उनको बता दो कि 70 साल की इबादत मुस्तरद कर दी गई है। मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे ने पूछा मूसा बताइए यार की तरफ से कोई पैगाम आया है? आपने कहा पैगाम आया है मगर दुख वाला, पैगाम आया है मगर तकलीफ वाला है। आपने कहा पैगाम दो, यार का पैगाम दो। हम मशरब इश्क रखने वाले, हम मोहब्बत रखने वाले, हम अजर और सौदाबाजी करने वाले नहीं। हम इबादत करते हैं सौदे के लिए नहीं, जन्नत की तिजारत के लिए नहीं, हूर गिलमान के लिए नहीं, उसे राजी करने के लिए करते हैं। पूछा पैगाम, फरमाया कि अल्लाह ने कहा है कि इन्हें कहो कि तुम्हारी 70 साल की इबादत मुस्तरद कर दी गई है। सुनो फिर अजीब तरीका, आप उठ खड़े हुए और नाचना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम परेशानी के आलम में सूफी को देख रहे हैं। आपने कहा तेरी 70 साल की इबादत मुस्तरद हो गई है, अब तू नाच रहा है। तुम्हें तो तकलीफ होनी चाहिए, तुम्हें तो दुख होना चाहिए, तुम्हें तो रोना चाहिए, मगर तू नाच रहा है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया मशरब इश्क का दस्तूर निराला है, मोहब्बत वालों का दस्तूर निराला है, चाहत वालों का दस्तूर निराला है। मैं जो 70 साल यहाँ पे बैठा था, मैं जन्नत के लिए नहीं बैठा था, मैं हूर गिलमान के लिए नहीं बैठा था, मैं जन्नत की नहरों के लिए नहीं बैठा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये बता फिर इतनी रियाजत क्यों की है, फिर इतनी इबादत क्यों की है? आपने जवाब दिया मुझे इससे गर्ज नहीं है, यार कुछ दे ना दे मुझे इससे गरज है। यार ने याद तो किया है, मैं नाच इसलिए रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी इबादत मुस्तरद हो गई है, क्योंकि मैं मोहब्बत का फिरका रखने वाला हूँ, मैं मोहब्बत का पैगाम देने वाला हूँ, मैं चाहत का पैगाम देने वाला हूँ, मैं अदब का पैगाम देने वाला हूँ, मैं मशरबे मोहब्बत रखने वाला हूँ, मैं चाहत का मशरब रखने वाला हूँ, मैं सौदेबाज नहीं, मैंने सौदा नहीं किया। यार को राजी करना मैंने सीखा है, मेरा मशरब ही यार को राजी करना है। उनका पैगाम आ गया, मेरे लिए काफी है। अगर वो रद्द भी कर दे मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे खुशी इस बात की है यार ने याद तो किया है। ये सूफिया का पैगाम अमन का है, मोहब्बत का है, चाहत का है। आज पीर रंग अली के दरबार पर रंग जो लगा है ये बता रहा है कौन मा सादिकीन, सच्चों की संगत में जो रहने वाला टोला है यही असल इस्लाम है, यही इस्लाम का असल चेहरा है, यही इस्लाम का असल पैगाम है। बारी ताला हम सबको मोहब्बत रसूल अता फरमाए, दामन औलिया से वाबस्तगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़। अब हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान जनाब इज़्ज़तमाब मोहतरम जनाब सरकार बलवसन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से नवाजें। अमन कॉन्फ्रेंस के आखिरी मुकर्रर मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर सरकार बलवसन साहब।
तमाम मुसलमान भाइयों नू अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन नहीं हुए, अज तुसी ते आए हो और सलाम का जवाब बिल्कुल मिलिया नहीं। दोबारा मैं कह रहा तमाम मुसलमान भाइयों नू अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहदे विच 36 बुजुर्गों का कलाम शामिल है, जिहदे च बाबा फरीद, बाबा कबीर जी, बाबा भीखन जी का भी कलाम शामिल है। और वो मैं सारियां दा थोड़ा थोड़ा जिहड़ा है वो आप जी नूं दसांगा। लिखते ने कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। पर अफसोस है अज अज खुदा दे बनाए हुए ते इतराज करते है, अज खुदा दे बनाए हुए नूं मारते है, पर अपने बनाए हुए मोबाइल के उत्ते अगर कोई उंगली उठांदा है कि उन्होंने अदालत च घसीटते है। अगर असी रब नूं वाकई मनते हाँ तो असी सानू उहदा बन के रहना पाएगा। अगर असी उहदे बन के रहिए तो मेन ये हो गया कि असी उहदे हो गए, असी सारियां दे हो गए। कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन अपने मर्जी नाल इस दुनिया च नहीं आया, सब नूं खुदा ताला ने भेजा है। अगर खुदा ताला ने भेजा है, खुदा एक है, कोई उन्होंने बुत दे विच लभदा है तो कोई उन्होंने कुरान शरीफ दे विच, कोई उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब च लभदा हैगा तो कोई उन्होंने बाइबल दे विच। सब नूं तलाश है खुदा ताला दी, पर हर जगह ते खुदा ताला दा नाम तो पढ़िया जाता है, खुदा नूं इंतजार हुंदा है पर बंदा उहदा इंतजार नहीं करता। किसी जगह ते भी असी आ जाइए ना तो असी पहले कहने हैं कि असी जेडे अज तो पुराना 15 दिन पहला जो 10 सिपारे पढ़े सी अज वो शामिल कर दिए। कर वाला कहना जल्दी जल्दी वो भी शामिल कर दो, 15 दिन अगे ये भी जोड़ दो ताकि मेहमानों ने जल्दी वाले चले जान। असी अपनी पहचान वास्ते, अपने कम करने वास्ते, गड्डी खरीदन वास्ते, रिश्ता करने वास्ते, हर कम वास्ते इन्नी जांच करते हैं कि इस दुनिया के उत्ते उसनों बिल्कुल कायम रहना है और उन्हें बिल्कुल इस दुनिया तो मिटना ही नहीं है। रिश्ता असी इस तरीके नाल करते हैं कि ये रिश्ता नहीं, असी इसनों खरीदे है, ये साडे कायम रहेगा। पर ऐसे लोगों ने देखा है कि बादशाही दे विच, महलों दे विच उरी कुड़ी गई है पर फकीरे च आई हुई है। ये उस मालिक की देन है, ओदे लिखे हुए करम है। लिखते ने कि लेख न मिटे हे सकी जो लिखिया करतार। करतार मीन अल्लाह, जो खुदा तला ने इत्थे लिख दिता है उन्होंने कोई मिटा नहीं सकता है, ओदे नसीब नूं कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, बदल किहड़ी चीज सकती है? कुरान शरीफ बदल सकती है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बदल सकता है, बाइबल बदल सकता है, गीता बदल सकती है। किवें? जदों असीं उहनूं इस तरह ढूंढांगे, इस तरह लभांगे जिस तरह अज असीं रिश्ता लभदे पए हैं। जिस तरह अज असीं गड्डी वास्ते 2 बंदे लैके गए हैं और उहदे कोल असीं गड्डी पसंद करवानी है, उहदे पुरजे चेक करवाने ने, असीं इस तरह का बंदा लभीए कि कुरान शरीफ वो इस तरीके नाल पढ़ के सुनावे कि मेरे कन्नां नूं और मेरे मन दे जिहड़े रोंगटे ने वो खड़े हो जावे। कदी असीं इस तरह कीता? नहीं। फलाने की आवाज बड़ी चंगी, उन्हें बुला के ले आओ, उन्हें 16 पहला पढ़े सी, 4 होर पढ़ देते, बस गल खत्म हो गई, दुआ हो गई, सब करो करे चले गए। क्यों? अज असी उस तरह क्यों नहीं किया? बेटी की तरह क्यों नहीं असी किया? गड्डी तरह अजीज क्यों नहीं समझा? घर की तरह अजीज क्यों नहीं समझा जैसे कुरान शरीफ नूं कि सिर्फ असी उहदे कोलों अपनी मतलब की गल मनानी है। हाँ, अज इत्थे गल आएगी। जाना है पहला, सब तो पहला लिस्ट बनानी कि चीज अज असी दरबार में जाके मंगनी है, देनी नहीं। जोत केड़ा जगाना हैगा, तागा किथे बनना हैगा, ये सब कुछ पता हैगा, पर अपने दिल नूं जो बन के आना हैगा वो किसी नहीं पता है। दरख्त नूं तागा बन के चले गए, बाबे दे डेर नूं तागा बन के चले गए, मन नूं तागा बन के जा कि बाबा रंग अली सरकार आज मैं तेरे दरबार पे आया और मैं तेरे दरबार पे कुछ सीख के जा रहे हैं। की सीख के जा रहे हैं? जिस तरह तू उहदा होया सी ना, मैनू भी इस तरह कर दे, मैनू भी उहदा ही कर दे। कदी क्या? नहीं। किसी नूं पैसे चाहिए, किसी नूं रोटी चाहिए, किसी नूं कोई होर, कोई किसी होर काम, कोई ये नहीं मंग रहा। मंगो तो सही। अगर वो रंग ओटे रंग से रंगया गया, असीं भी रंगे जा सकते हैं। जिथे अज हजारां की तादाद आई है, उथे कल साडा दिन भी आ सकता है।
कल सानू भी किसी महफिल च याद किया जाया जा सकता है। बाबा फरीद का शकर फरमाते ने, फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब मां है। खलक दे विच ते रब वसदा है, दिलां च तेरा बसदा है। मस्जिद किने बनाई है, गुरुद्वारा किने बनाया, गिरजा किने बनाया, मंदिर किने बनाया, इट्टा तो सिमटा तो इन्हां तो असीं बनाने हैगे, पर इहदे अंदर की हो सकता है, उहदी इबादत हो सकती है। उसका घर असी समझ के घर तो यह बनया हुआ है। जदों असी देखते हैं कि असी क्रिश्चियन नूं या सिख नूं या हिंदू नूं या मुसलमान नूं दुख तकलीफ देंदे हैं तो मीन समझ लो कि असी रब नूं देने हैं। कदी असी समझ के असी काम कीता नहीं। मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई ना है। बाबा फरीद कह रहा है कि मंदा तो खुदा तला मैं उस इंसान को कह देवा जेड़ा तेरे साथ तो बिना तो है ही कोई नहीं, मैं किस तरह उन्हें बुरा कह देवा। गुरु नानक साहब की फरमाते ने कि सगले जी तुम्हारे बुरा भला कहो किसनू कहिए। ए खुदा सारे जी तू पैदा कीते ने, तेरी ने मैं बुरा क्यों कवा चंगा क्यों कवा। इसी तरह अगर असी इंसानियत के रस्तों ले लिए तो कुरान शरीफ च लिखा हैगा कि एक इंसान की जिंदगी बचाओ तो तुसी कुल इंसान की जिंदगी बचा ली है। इत्थे कोई मुसलमान का नाम नहीं हैगा, कोई सिख का, कोई हिंदू का, किसी मजहब का नाम नहीं हैगा, इंसानियत का नाम है। गुरु ग्रंथ साहब च फरमाते ने कि हो कुर्बान जाओ ते ना कह लैन जो तेरा नाओ। ए खुदा मैं उस तो कुर्बान जावा जेड़ा तेरा जिक्र करे। इत्थे भी जिक्र नहीं होया सिख दा, मजहबी किताब सिखां दा, लेकिन जिक्र नहीं होया। जिक्र किदा होया? इंसानियत दा होया। अज असी इंसान बन के रहिए ना, सब तो वड्डी गल है। मुसलमान नहीं, इंसान बन के रहिए, सिख बन के नहीं। ये यूनीफॉर्म मेरे ना नहीं जा सकता है। सिखा ने साड़ देना इन्हू, मुसलमाना ने इन्हें दफना देना है। बहुत सारे लोगों ने पानी च छोड़ देना है, बहुत सारे लोगों ने हवा च रख देना है। पानी, मिट्टी, अग, हवा सब ने इनू गाल साड़ देना है। किसी ने भी साबत सूरत नहीं रखना है। किस दी आपां असी रल के सारे नाल सत्संगत कैसी जानिए जिते इको नाम खानी है। अज असी सत्संगत करते पे क्योंकि उस अल्लाह ताला दी जिक्र हो रहा वा, ये सत्संगत हो रही है। जिसनूं तुसीं महफिल कहंदे हो, मैं पंजाबी च सत्संगत कहना। सत्संगत हो रही है। अज रब दीयां मिठियां मिठियां गल्लां सारियां दे घरां च पै रहीआं ने। अज उसदा जिक्र हो रहा है, उसदे असी बन रहे हैं, असी उसदे हो रहे हैं, असी उसदे वल जा रहे हैं। अगर इथों करिए ते मुंह नाल तो बहुत कुछ किया जाता है। अज असी उसदा बनन वास्ते हकीकत कुरान शरीफ नूं सुनना पएगा, सुनना समझना पएगा। सिर्फ ये नहीं करना पएगा, पाठ नहीं, मुंह ज़बानी नहीं, सिर हिला के नहीं। माफ करना, जिस किसी ने भी पढ़ना होवे इसी तरह करो जिस तरह बेटी वास्ते रिश्ता लभदे हो। इसी तरह का बंदा लभो ताकि तुहाडे कंध विच सुनावे और पता लगे कि कुरान शरीफ से लिखा गया कि एक इंसान बचाओ, कुल इंसानियत नूं बचाया है। समझ आ जाए सब नूं, सिख नूं भी, सब नूं, हर एक मजहब नूं पता लगे। अगर अज असी पाकिस्तान दे विच रह रहे हैं, पाकिस्तान की मिट्टी कितनी जबरदस्त है। एक कमांडा सारे खांदे ने, किसी मुल्क च नहीं है। बाहरले देश तो आए ने, बहुत सारे बैठे ने। मैं किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि रंगली सरकार दे सारे रंगे हुए है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इस करके सब का नाम वो आ गया। छोटे सब इतने कोई छोटा वड्डा नहीं, सब एक बराबर है। जेड़ा उसका जिक्र सुन रहा है उस बराबर है, जेड़ा जिक्र नहीं सुनता पिया, माफ करना करे पिया या कोई ताश खेल रहा, कोई होर कमां च लगा होया, वो बस वो अपने आप को किस तरह समझा जा सकता है, वो अपने आप को समझे। कहते ने कि बेनमाजा कुत्तिया बाबा फरीद ए न पली रीत कभी चल न आया पंजे वक्त मसीत उठ फरीदा उजू साज। ये तो मुसलमान भी तो कह सकता सी यार, कौन की बिगाड़ सकता सी ओदा, लेकिन अपना नाम लिया ना। इसनू कहते हैं आजी। जदों अपने आप को मारोगे फिर तुम्हारे अंदर वो आएगा। असी अपने आप को मैनू मारते नहीं है। माफ करना, कुरान शरीफ नू पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नू पढ़ लेना,
गीता भागवत ਨੂੰ पढ़ लेना है कोई काम नहीं है, माफ करना। सुनना समझना ये साडा कम है। इंसान इसी वास्ते ये समझ है, ये सोच ही है। पंजाबी च कहते ने गुरु द्वारे होए तो सोझी पाए सी। इत्थे तुसी कह सकते हो कि मस्जिद तुसी जाओगे तो सोझी पाओगे ना, किसी महफल से जाओगे तो सोझी पाओगे ना। उत्ते कहने ने कि उठ फरीदा उजू साथ सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। उन उतार जिला साई दे सजदे नहीं कर सकता, उस किस कम दा। जितने भी असी मज़ाहब इत्थे बैठे ने अमन दा प्रचार करते हैं, इस तो पहला साडा अपना एक हक बनता हैगा जो गुरु नानक महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा है। 5 नमाजा वक्त 5 पंजे 5 9, 5 नमाज ने 5 उंगलियां ने। नादान होके इस तरह का बन जिस तरह बचपन एक एक उंगली बार बार गिनता सी। सियाना ना बने थे और नादान होके वो नमाजा पढ़ना शुरू कर दे, कदी सियाना ना बनी। बाबा नानक जी ने तो फरमाया ना कि सहस सियाण पालक हो है ता एक न चले नाल। तू जितना मर्जी सियाना हो जा, तेरी सियान खुदा तला दे नाल नहीं चल सकती। उत्थे कहते हैं कि 5 नमाजा वक्त 5 पंजे 5 9, पहला सच हलाल। पहला नमाज की बड़ी जबरदस्त मतलब है, बड़ी जरूरत है पढ़न की, क्योंकि वो सच और हलाल दे जदों बंदा सवेरे पढ़ेगा की पढ़ेगा, उहदे मुंह दे सच होएगा और जो कमा के लेके आएगा और रिज़्क़ हलाल होएगा। दूआ तीजा खैर खुदा है, दूसरा तीसरा नमाज खैर खुदा वास्ते है। आपां बैंक तो लैके लिखण तो लैके इट्टा अग जिन्ने भी काम ने, एक बैंक से लिखण वाला जीरो तो भी डरदा है कि इत्थे वध ना पै जावे। उठी करके 2 नमाजा जिहड़ियां ने खैर खुदा वास्ते, चौथी नीयत रास करदा है, 5वीं अल्लाह तआला दी सिफत सुणांदा है। जिस तरह अज असीं घरे जाके किसी ना किसी दी सिफत जरूर कर देनी है। जब महफल खत्म हो जाना ना या प्रोग्राम खत्म हो जाना, इहदा सिरा असीं किसी दे सिर ते जरूर पा देना है। उसी तरह पूरा दिन दा सिरा असीं किहदे ते पावांगे? खुदा तआला ते, कि पूरा दिन मेरा किस तरह गुजरे, ये तेरी कृपा। करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए, वो उस तो बाद अपने आप को मुसलमान सदवा सकता है। मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान दे विच एक कमान वाला सारे खान वाले सी, इसनू कायम रहने वास्ते अज सारे मुसलमान रल के सिख हिंदू क्रिश्चन, मेरा जितना तक ख्याल है इन्हां दे तिन्हां दे कोई ना खास गिनती है और ना कोई खास इस तरह की कोई शैतानी वाला या कोई गलत ऐसा कोई काम है। माफ करना, तुहाडे अंदर जेड़े दूसरे लोग आ रहे ने और वो खराब कर रहे ने, उन्होंने पहचानो, क्योंकि कुरान शरीफ का दर्स ये नहीं है कि किसी को तकलीफ दो। सब पढ़न वाले ने, सब नमाज पढ़न वाले कम से कम जुम्मे दे नमाज से जारी जाते हैं और उहदे विच ये सब गल्लां है कि तुसी एक बनो और एक हो के इसनू बचाओ और इहदा ख्याल रखो। बाहर जाण दी ना करो, अपनी जमीन ना वेचो, अपनी जमीन नू वेच के ना जाओ। अंग्रेज़ां दे कपड़े धोण दी जरूरत नहीं, तुहानू अपनी जमीन नू तवज्जो दिओ ताकि पाकिस्तान साडा पैरां ते खड़ा हो जाए और सानू इसका फल मिले और सानू इस दे विच हरियाली मिले, अमन मिले। जिस तरह आज सारे है, आज तक गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। किन्ने साल हो गए गुरु नानक जी की कृपा नाल पाकिस्तानियों की मुसलमानों की मुहब्बत के सदके आज तक कोई ऐसा वाकया उत्ते नहीं होया जिन्हों आप कहिए कि यह गलत होया। सच्चे सौदे तो लंगर शुरू होया, भाई साहब उरे बाहर रहंदे उन्होंने पता होएगा कि जिन्ने भी स्टूडेंट ने, जिन्ने भी उत्ते काम करने वाले ने, वो सब जाके गुरुद्वारे लंगर खांदे ने। पर इत्थे एक गल है, साडा सैलमा एक है, मार्केट एक है, खाना एक है, सब कुछ एक है। पर जदों मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे की गल आंदी है, उत्थे असीं वखरे वखरे हो जाने। खबरदार मस्जिद वाल जे आया तो तू मुसलमान हो गया,
ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਮ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਗੋ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੀ, ਬੇਟੀ, ਮਾਂ, ਬਹਿਨ ਜੋ ਪੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਵਰदिगार पाकिस्तान के ऊपर जितनी तकलीफें आ रही ने इसनू खत्म कर दे। पंजाब के ऊपर बहुत सारियां इतने जुल्म होए ने, इतने वारदात होए ने, हुण इनू बचा। हुण असी वो खून खराबे नहीं दे सकते। हुण असी वो साडे विच ताकत नहीं रही कि असी वो दोबारा देख सकीए। हे परवरदिगार, तू सारे ते कृपा कर, मेहरबानी कर, साडे ते अमन और शांति साडे पैदा कर, और सारे दे दिल जड़े ने ना एक कर। एक दाढ़ी मुछ नहीं, दाढ़ी मुछ की जरूरत नहीं है। मैं पगड़ी बनी है ना, इसनू यकीन करो ना, ना बेटी ने रखना, ना मां ने रखना, ना बीवी ने रखना जिहड़ी पसंद करके शादी की है। उन्हें कहना बस फटाफट टेलीफोन आया, तुहाडा बेटा फौत होया, कहना किस टाइम जनाजा, ए नहीं कह के कितने दिन रखना है। मेहमान असी सारे, हर एक अपने घर के अंदर मेहमान है, इस दुनिया के ऊपर मेहमान है। पढ़ो कुरान शरीफ तो कुछ सीखो, पढ़ो बाइबल तो कुछ सीखो। बाइबल के ऊपर किसी का कब्जा नहीं, कुरान शरीफ के ऊपर किसी का कब्जा नहीं, क्योंकि ये अच्छे इंसान वास्ते है, चेहरे वास्ते नहीं। मैं सारे अपील करदा, सारे गुजारिश करदा कि रंग अली सरकार दे अज असी इत्थे आए हैं और उस दरबार दे इत्थे जाके दुआ करिए कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी तकलीफें आ रही ने, असी जितने बेनमाजी हो गए हैं, सानू अज नमाजी बना दे ताकि असी तुहाडे 5 वक्त नमाज पढ़ सकीए। असी दुआ करिए कि 2 टाइम असी गुरुद्वारे जा सकीए। क्रिश्चियन दुआ करे कि असी अपनी इबादत कर सकीए, हिंदू जड़े ने अपनी इबादत कर सकन और अमन और शांति रहे। मेरी ये दुआ है और सारे मुसलमान भरावां नूं एक गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। सरदार जी वास्ते भरपूर क्लैपिंग प्लीज। अब मैं इंतहाई मज़बाना अंदाज में दरख्वास्त करूंगा हजरत साई रंग अली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के मुंतज़िम आला, अल्लाह करीम की करम नवाजी के बाद रब ताला ने उन पर अपनी बेपनाह करम नवाजी फरमाई। एक इंतहाई अदालती कठिन मराहिल में से उनको सुरखरू किया। तो आज आपके दरमियान अमन कॉन्फ्रेंस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए और आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद असलम जलाल साहब, आपकी भरपूर तालियों में खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं जनाब मियां असलम जलाल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त की नज़ाकत, हम जितने भी लोग काफ़ी देर हो चुकी है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं जिस मरहल से पिछले 2 साल से गुजरा, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज आपके सामने आपके दरमियान जिंदा सलामत खड़ा हूँ। मैं तहदिल से आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि मेरी गैर हाज़िरी ने आप सब ने मेरे लिए दुआएं की और अल्लाह ताला ने रंग अली सरकार के सदक़े में
उसे मंजूर किया। बाकी ये सिलसिला आप जानते हैं पिछले 39 साल से चलता आ रहा है, और मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त, मेहमान, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और साइमीन, इस वक्त हम जनाब मियाँ असलम जलाल साहब जो कि सालाना उर्स मुबारक हज़रत साईं रंग अली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तकरीबात के मुंतज़िम आला अमन कॉन्फ्रेंस जिसके बानी और रूह रवां हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बरतानिया से तशरीफ़ लाए हुए मुमताज़ बरतानवी ताजर इज़्ज़तमाब मियाँ मोहम्मद असलम जलाल साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप मुझे इंटरव्यू करते हैं, और ये गुडू मूवी का बहुत शुक्रिया जो फिल्म बना रहे हैं। हमारे मुल्क में पिछले 10 साल से, जैसे कि आपने फरमाया, कि दहशतगर्दी का दौर हो रहा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इस ऑल ओवर, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चूँकि ज़्यादा जाती है और जो कि हुकूमत पाकिस्तान से ये कंट्रोल में नहीं है। इसमें बहुत सारी एजेंसीज और फॉरेन कुव्वतें शामिल हैं, जिसमें हमारे नेबर कंट्री भी बढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि हम फॉरेन में बैठे हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तो लोग न्यूज़ भी नहीं सुनते। मैंने बहुत सारा नोटिस किया है कि ड्रामा देख रहे, न्यूज़ लगे उठ के चल पड़ते हैं। न्यूज़ सुननी चाहिए और न्यूज़ सुनकर उनको अपने ख्यालात का आधार करना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन, मैं रोज़ाना देखता हूँ, मुनाज़रे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, ख्यालात का इज़हार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं है। अमली तौर पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी पॉलिटिशियन को चमकाने के लिए या अपनी सीट को कैरी ऑन रखने के लिए वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक और टेररिज्म के सिलसिले में कोई इस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं। तो इस बात की मुझे सख्त तकलीफ है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो अमन कॉन्फ्रेंस जो हमने रंग अली सरकार के दरबार पर उसका ये जो सिलसिला हमने शुरू किया, जिसमें हम तमाम डिफरेंट कम्युनिटी को इन्वाइट किया, जैसे कि उसमें बलवंत सिंह फ्रॉम लंदन साहब, और उसके बाद डॉक्टर नज़ीर मसीह जो कि प्रीस्ट हैं, यहाँ क्रिश्चियन लोगों के हैं, और उनकी तकरीरें आपने सुनी हैं। बलवंत सिंह ने बहुत खूबसूरत तकरीर, जिसमें उन्होंने कुरान के हवाले भी दिए, हज़रत बाबा फरीद के हवाले भी दिए, और मैं बड़ा कमेंट हुआ उनसे ये उनकी तकरीर सुन के। और उनकी ज़्यादातर की तकरीर में यही था कि अमन, मुल्क में अमन होना चाहिए। जिस मुल्क में अमन नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता। आप देखें ना, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है। मैं हर साल, हर 2 महीने बाद, हर 4 महीने बाद पाकिस्तान इसीलिए आता हूँ कि यहाँ हमारी रूट्स है। इन रूट्स को हम कभी नहीं भुला सकते, और ना ही किसी को भुलाना चाहिए। इंसान को अपनी औकात, अपनी रूट्स, अपने मुल्क से लॉयल्टी जो है ना, बहुत ज़रूरी है। आप बरतानिया में देखें, आप जो कुछ भी वहाँ हो, लेकिन लॉयल्टी मुल्क के साथ कोई गद्दार नहीं है। हमारे मुल्क में जिसको देखो, सेल्फ 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 एंड सेल्फ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये सब इस हवाले से मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि हज़रत साईं रंग अली सरकार ने हमेशा अमन, मोहब्बत और इंसान दोस्ती का पैगाम दिया। आप हज़ारों मील दूर बैठकर ये कैसे आपके ज़हन में आया कि ये पाकिस्तान में वह दरबार है जहाँ पर सिख, मसीह बरादरी और दीगर मज़ाहिब को आपने दावत दी? ये आपको ख्याल कैसे सर आ गया? ये देखिए, अगर आप 1400 साल पहले चले जाए, हमारे रसूल अल्लाह की ज़िंदगी अगर साझा करें, तो ये पैगाम उन्होंने तमाम दुनिया को दिया। अमन का पैगाम उन्होंने तमाम दुनिया को दिया। उन्हें, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पास सब्जेक्ट था इक्वलिज्म, मसावत। उसमें ओपनली उन्हें कहा गया कि देयर इज़ नोबडी अबव समबडी एल्स, काला गोरा सब विल ऑल इक्वल। तो ये तो पैगाम वहाँ से चला हुआ। फिर आगे हमारे औलिया कराम जो चले सिलसिला, वो इन्हीं बातों को लेके आगे वो बढ़े। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने ये दरबार साईं रंग अली सरकार, जब मैं इस साल उस पर आया, पिछले 2 साल तो वहाँ नहीं सका, आपको पता है, जो पुरानी थी कुछ मेडिकल इशू थे, उनकी वजह से नहीं आ सका। और उसी पैगाम को लेके हम आगे चल रहे हैं कि अमन जो है, ये औलिया कराम, हमारे जितने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें यही पैगाम है कि प्यार, मोहब्बत और अखुवत और इक्वलिज्म, कोई गोरा काला किसी को किसी पर फौकत नहीं है। ये सब दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से आप हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों और खुसूसन जो मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी कुत्ते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जिससे ये दहशतगर्दी का खात्मा हो, मुल्क तरक्की कर सके और हमारी मईशत बेहतर हो सके? तो भाई ये बड़ी सिंपल सी बात है, वी शुड गेट टुगेदर, डोंट कट थ्रॉट ईच अदर, गेट टुगेदर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस मैटर। ये सब इस उर्स मुबारक के हवाले से आप अपने मुर्शिद पाक के मुरीदों को कोई पैगाम देना चाहें? जी हाँ, मैं अपने मुरीदान या जितने लोग वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो इस हमारे उस सालाना उस पर लाखों हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। इनको वहाँ सुकून, पीस मिलता है दुआ के, और इसी पीस, और मुझे उर्दू में क्या इसको आप कहेंगे, पीस का क्या तर्जुमा करेंगे? अमन। अमन यार एक रूहानी सुकून के लिए, दिस इज द राइट वर्ड, रूहानी सुकून के लिए वहाँ लोग आते हैं। आपने देखा कि एक बच्ची जो मेरे ख्याल 13-14 साल की थी, वो चदर लेकर साईं रामदेव सरकार की वो फोटो भी लेकर वो कमाले गाते जा रहे थे। वो एक मोजज़ा था कि वो ब्लाइंड हो गई, उसने वहाँ आकर मांगी, हाँ, उन्हें आकर वहाँ मन्नत मांगी, और उसकी ये बिनाई जो वापस आई है, ये हमारे साईं रामदेव सरकार की करम में से एक है। और वो आपने देखा, उसने वीडियो में भी आप देख सकते हैं, वो कितनी दवालें डालती, कितनी खुश आई। इस तरह हज़ारों लोग वहाँ आते हैं। ये सब आखिर पर मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप 3 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सके, अपने पीर और मुर्शिद के दरबार पर तशरीफ नहीं ला सके, उस वक्त की जो जुदाई थी, जो आपके अंदर के जो एहसासात और जज्बात थे, उसको आप किस अंदाज में बयान करना पसंद करेंगे? भाई मेरे लिए तो ये इतना बड़ा मरहला था, ये एक लीगल इशू था, जो आपने मेरे ख्याल यहाँ अखबारों में नेट पे भी ये सब देखा होगा कि मुझ पे बरतानिया की गवर्नमेंट ने, कस्टम एक्साइज ने 200 मिलियन पाउंड्स का मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था। चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग मेरा कारोबार वहाँ करेंसी का है, पाकिस्तान है, सॉरी इंग्लैंड में, तो ये बेसलेस, बिल्कुल टोटली बेसलेस एलिगेशन मेरे को लगा था। और इंशाल्लाह आपने, आप लोगों की दुआ से, ये जितने भी यहाँ दरबार पे लोग आते हैं, जो मुझे जानते हैं या नहीं जानते, सब ने मेरे लिए दुआ की, और हमेशा मेरा ईमान है कि जो इनोसेंट है वो एंड ऑफ द डे इज इनोसेंट। तो ये केस उन्होंने 2.5 साल के बाद टोटली कोर्ट जाने से पहले उन्होंने विड्रॉ किया और हमें एग्जोनरेट किया। इसका मतलब है कि बाइज्जत बरी किया। और मैं आपके सामने इस साल, और वो जो 2 साल मैंने गुजारे हैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इट वाज टेरिबल। ये सब जब आप पाकिस्तान में तशरीफ लाए, इन 3 साल के अरसा के बाद, जो आपका इस्तकबाल था और दरबार शरीफ हज़रत बीबी पाक दामन हज़दाता साहब और अपने मुर्शिद पर, वो आपके क्या जज्बात थे? वो जज्बात आपने शायद देखे होंगे मेरे चेहरे पे, जो खुशी की लहर आपने देखी होगी। मुझे इतना सुकून था, और मैं ये देख करके लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। एयरपोर्ट वो जो सिलसिला हुआ, जो आप लोगों ने रिसेप्शन की और जो नारेबाजी की, और ये यहाँ तक कि वहाँ नाते और कवालियाँ भी वहाँ मुनक्कद हुई, जो मेरे लिए एक बड़ी एक अनयूजुअल सी चीज़ थी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी रिसेप्शन इस तरह से, और आई एम रियली फील प्राउड। आखिर में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने लोगों ने मुझे प्यार किया, जो बरादरी में से स्पेशली बलवंत सिंह और डॉक्टर नज़ीर मसीह जो कि प्रीस्ट हैं यहाँ के, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। वहाँ तशरीफ लाए, इस अमन के पैगाम को उन्होंने एक मसीह और तक़वियत दी। तो मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि और भी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, मेरा उनके लिए ओपन इन्विटेशन है कि नेक्स्ट ईयर जब हम 7 अक्टूबर को दोबारा रामदेव सरकार के उस पर आऊँ, तो वो उनको ओपन इन्विटेशन है कि वो जरूर तशरीफ लाए, ताकि हम मिल बैठ कर इस ट्रैवलिंग को खत्म करें। और जाते जाते मैं बहुत कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो लोग उस पर आते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हैं तो हम हैं। थैंक यू।